welcome and welcome back to my channel. As you know better. My name is Dipanshi Thakur and I am second year BSc nursing student at AIIMS Jammu. So today I am making this video, and the motive behind of making this video is that we all know कि AIIMS BSc entrance exam बहुत पास है and everybody having the same doubt कि physics नहीं हो रही है, physics को कैसे handle करें, how to what are the strategies to do the physics ki we is able to score 25 out of 30. So I'm going to tell you that so this video is basically for that. I scored around 95 in my boards because I follow the same strategies that I will going to be tell you in this video, and the same strategies I follow for my entrance exam as well. So I personally believe कि बहुत सिंपल सोवर है, एंड सबसे पहले तो रियलिटी जो है, अगर आज से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं कि समय इतना नहीं है, ठीक है. इफ़ यू थिंक सो कि यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू विल टेक ईच एंड एवरी टॉपिक and you need to be go into depth and you need to be solve at least 100 questions for one topic, then that not going to be possible. तो रियलिटी जानो कि कुछ बच्चों ने बहुत समय वेस्ट कर दिया, या कुछ लोगों के पास ड्यू टू एनी सिचुएशन समय नहीं मिल पाया प्रिपरेशन का. सो राइट नाउ यू हैव टाइम, and if you follow those strategies that I will tell you, then definitely you will score good in the physics. ठीक है. नाउ द थिंग इज़ दैट कि हर टॉपिक करना ज़रूरी है, डेफिनेटली हर टॉपिक करना ज़रूरी है इफ़ यू हैव टाइम, बट वी आर टेकिंग दैट सिनेरियो कि अब हमारे पास समय नहीं है एंड इट्स अराउंड 30 to 35 days are left for the exam. So you need to be follow very specific topics that come regularly every year. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें यही टॉपिक आ रहे हैं जो मैं भी आपको बताऊँ. सो रेदर देन गोइंग थ्रू एवरी टॉपिक, इट्स बेटर कि आप हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ें, उनको इन डेप्थ जानें एंड उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करें, एंड देन सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कि इस चैप्टर से और इस चैप्टर के इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड देन डू द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस and keep doing practice. So I made a PPT in which there are important topic for the exam. So in the chapter solid and fluid mechanism, it is very important for you to go through the Stokes law, Pascal law, elastic potential energy and Hooke's law. And it's very important that Hooke's law questions are always come in the exam. Then in the second, which is optics, so you need to be go through the lens maker formula in very depth. At the same time, you need to be keep doing practice for the questions, and YDSE is very important. Optical instruments is also come sometimes. In the first chapter, which is electrostats and electricity, it is important you to go through all these topic and keep doing practice of the questions. Sometimes electric field, potential energy के भी questions जो है हमसे वो गलत हो जाते हैं. So just keep practicing and previous year question paper देखो and देखो कि कैसे questions आते हैं. In the modern physics बहुत easy है, बहुत scoring है. तो ये सारे जो topics मैंने लिखे हैं, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं और इससे related questions की practice बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो modern physics से तो question मुझे लगता है आना ही आना है. It means that you are securing your marks. And after that the mechanics chapter comes. It's very simple and it's very easy. अगर आप इस पे पकड़ बना लेते हो ना अपनी, तो मुझे लगता है इसके क्वेश्चंस तो मुझे लगता है बहुत रेयरली गलत होते हैं. बेसिक आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी का आना ही चाहिए, क्योंकि वो बेसिस ही फिर वो आगे जाके फॉलो होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू ऑल द ग्राफ्स. समटाइम्स ग्राफ पे सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी पे, कोलिजन पे तो हमेशा ही क्वेश्चन आता है. फिर हमारे पास मैग्नेटिक फिज़िक्स आती है, जिसमें LCR, एट रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, मतलब ये बहुत स्मॉल फार्मूलेज़ हैं. सो इट्स बेटर कि आप जितने भी फार्मूलेज़ हैं उसका एक जगह पे लिख लें. अगर फार्मूला शीट मिलती है, यू कैन मेक योर ओन एंड जस्ट कीप रिवाइजिंग एवरी मॉर्निंग, तो बेटर रहेगा. क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है, फार्मूला अगर हमें याद नहीं होगा तो हम
आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे. समटाइम्स इज जस्ट कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो 5 मिनट के अंदर अंदर आप जो चीज़ें हैं वो सॉल्व कर सकते हैं. देन द यूनिट डायमेंशन, ग्रेविटी, SHM एंड वेव्स. डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आती होगी तो आप स्कोर कर पाओगे, नहीं आती होगी तो फिर गलत ही जाएगा वो. टाइम पीरियड, ऑस्किलेशन, बीट फ्रिक्वेंसी पे तो मेरे टाइम पे भी क्वेश्चन आया था. ऑर्गन पाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद थर्मल फिजिक्स एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मोशन ऑफ इनर्शिया थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है. इट्स बेटर कि आप रिवाइज करें और क्वेश्चंस देखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं. इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, वर्क, आइडियल गैस जो है PV इज इक्वल टू NRT. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड इसी पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है. सो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे एंड रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम, अभी से स्टार्ट करो. एक दिन में एक चैप्टर पकड़ो, उसके ये सारे टॉपिक्स कवर करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रिवाइज करो. देन चेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं. एंड मैंने भी अपने टाइम पे फॉर्मूला शीट बनाई थी एंड इट गोइंग टू बी हेल्पफुल. लाइक कि जितना भी जो भी फार्मूलाज हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट से लेके जितने भी छोटे मोटे भी फार्मूलाज हैं, इट बेटर दैट यू जॉट डाउन इन वन पेपर. एंड इस तरीके से फार्मूला शीट बनाना कि आपको रिवाइज करने में ईजी हो, ज़्यादा हौच पौच ना हो. क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अगर आपको आता होगा और आपको फॉर्मूला आता है देन आप आंसर निकाल लोगे, अदरवाइज तो फिर वो सब वेस्ट में जाएगा मार्क्स. या फिर अगर आप तुक्का लगाओगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग जाएगी. सो जस्ट बी सीरियस एंड अभी से सीरियस हो जाओ और इन टॉपिक्स को कवर करना शुरू कर दो. देन इट गोइंग टू बी ईजी फॉर यू टू स्कोर एटलीस्ट 22-25 और मे बी मोर. अदरवाइज 10 दिन बाद और तब भी अगर सीरियस नहीं होना है, जब एग्ज़ाम में 10 दिन रह जाएंगे तब सीरियस होना है, फिर यूट्यूब पे जाएंगे एंड सर्च करेंगे कि हाउ टू कवर फिजिक्स इन 10 days. सो इट बेटर कि आप हाउ टू क्रैक एम्स इन 2027 की वीडियो देखें, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता है. एंड जितने भी लोग अभी अपेयरिंग हैं एंड दीज पीपल हु आर वेरी सीरियस अबाउट दीज एग्ज़ाम, उन्होंने बहुत पहले से प्रिपरेशन करना शुरू कर दी है. आप भी अभी पीछे नहीं हैं. The only thing I can say that keep preparing, keep doing hard work and do not take entrance exam lightly. I don't know how you gonna take this thing in which way, लेकिन जैसा अभी नीट का हाल है, a lot of people going to be shift for AIIMS BSc nursing exam, especially girls, and competition बढ़ जाएगा. आगे आगे अगर सोचेंगे कि वी अनएबल टू क्रैक इन दिस ईयर, देन नेक्स्ट ईयर है, देन नेक्स्ट ईयर से एग्ज़ाम का टफ जो लेवल है वो बहुत टफ हो सकता है. मतलब यू गाइज नेवर नो. सो इट बेटर कि क्रैक कर दो इसी ईयर एंड जस्ट गेट योर सिलेक्शन डन एट एम्स. सो जस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड डू हार्ड वर्क. थैंक यू वेरी मच.